Dear students, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आज हम पोएम फ्रॉम आई एक्सप्लेन ए फ्यू थिंग्स रिटन बाय पैब्लो नेरूडा उसकी ओपनिंग लाइंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी इस पोएम की इंट्रोडक्शन ली है। This poem, it is simply a lamentation on Spanish Civil War, in which some renowned poets like Federico, Rafael, Albert, they were killed. वो मारे गए। और इंट्रोडक्शन में हम ये भी पढ़ा कि स्पेन जो था, when the poet was on a diplomatic mission, this Spanish Civil War, it broke out in 1936, and he lived in Madrid, which is Spanish capital that symbolizes prosperity, beauty, and a promising future. But this civil war, it destroyed its beauty, it destroyed the future and the prosperity. And later on, the blood gushed out, blood was flowing where from flowers used to burst. जहाँ फूल निकलते थे, जहाँ एक अच्छा मुस्तकबिल नजर आ रहा था, वहाँ अब सस्ता खून बह रहा था। Now today, let's explain the opening lines of this poem. Let us try to read these lines first. I lived in quarter in Madrid with bells, with clocks, with trees. From there could be seen the dry face of Castelli like a ladder of sea. My house was enamored, the house of the flowers, because everywhere geraniums exploded. It was a beautiful house with dogs and little children. And these are the opening lines of the poem. Now let us try to explain these lines. In lines mein, the poet says, I lived in quarter. Simply quarter means a place, किसी शहर का एक हिस्सा या कोई ब्लॉक। In Madrid, शायर कहता है मैं एक हिस्से में रहता था। In Madrid, which is Spanish capital, जो स्पेन की राजधानी है, वहाँ शहर के बीचों बीच शायर खुद रहता था। With bells, with clocks, with trees. Now, in these lines, the poet actually gives a description of the place. वो उस जगह का जिक्र करता है असल में जहाँ वो रहता था। मैड्रिड जो स्पेन का दारुल खिलाफा है, इंतहाई एक खूबसूरत जगह थी जहाँ उसने बेल्स, यानी ये बेल्स जो है ये गिरजाघरों के वो घंटे जो बजते हैं गिरजाघरों में, बेल्स विद क्लॉक्स, और बड़े बड़े क्लॉक वहाँ पे होते हैं गिरजाघरों में, विद ट्रीज, और प्यारे प्यारे दरख्त। इन द ओपनिंग लाइन्स द पोएट गिव्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेस वेयर ही यूज्ड टू लिव, जहाँ वो रहता था उस जगह को बयान करता है। दैट इट वाज ए चार्मिंग प्लेस, इट वाज ए ब्यूटीफुल प्लेस। सब कुछ ठीक ठाक था। जो बेल्स थी with its church bells, big clocks and lovely trees, खूबसूरत दरख्त थे, गिरजाघरों की वो घंटियाँ, वो घड़ियाँ नज़र आ रही थी, वो बजने की आवाज़ आ रही थी। In these lines, we can say the poet explains the beauty of the capital city of Spain. From there could be seen the dry face of Castelli. Poet says जिस जगह पे वो रहता था
वहाँ वो क्या देखता था? ड्राई फेस ऑफ कैस्टली। वो कैस्टली जो है स्पेन का एक पठारी हिस्सा है, इन a traditional central region constituting more than 1/4 of the area of peninsular Spain। तो इस जगह से वो देख सकता था, ही there could be seen the dry face of कैस्टली। वो इस खूबसूरत शहर के या खूबसूरत जगह जिसका नाम कैस्टली है, वो इस जगह का मंजर देख सकता था। Like a sea of dry face of कैस्टली, वो इस वस्ती हिस्सा जिसका नाम कैस्टले है उसको देख सकता था। जहाँ वो रहता था उस जगह से लाइक ए सी ऑफ लेदर। अब इस कैस्टली के बारे में कहा गया है कि इसको तशबीह दी गई है लाइक ए सी ऑफ लेदर। इट मीन्स इट सिंबलाइज रफ ओशन फुल ऑफ लाइफ। दिस प्लेस इट वॉज फुल ऑफ लाइफ, देयर वॉज हसल एंड बसल, इट हमड विद लाइफ एंड एक्टिविटी। ये जगह जो थी वहाँ जिंदगी रवां दवां थी, जहाँ सब कुछ नुमाया नजर आ रहा था। Then the poet says, My house was named। फिर वो कैस्टली के बाद इस शहर के जहाँ the life was full of activity, there was hustle and bustle, it was looking like a sea of leather। जैसे वो समंदर में शोर होता है, it symbolized rough ocean or the life full of life, there was activity। Then in the next line the poet says, My house was named the house of the flowers। शायर कहता है that his house was named the house of the flowers। मेरे घर को फूलों का घर कहा जाता था। अब वो ऐसा क्यों कहता है? Because everywhere geraniums exploded। हर तरफ से geraniums जो है ये एक फ्लावरिंग प्लांट होता है, तो geraniums हर तरफ से ये फूल ही फूल नजर आ रहे थे। दे एक्सप्लोडेड मीन्स दे स्प्रॉटेड, निकल आना। ये सफ़ेद या लाल फूल वाला एक पौधा होता है, इट इज अ फ्लावरिंग प्लांट। एंड दैट्स व्हाई द पोएट सेज दैट हिज हाउस वाज नेम्ड द हाउस ऑफ द फ्लावर्स, बिकॉज एवरीवेयर हर तरफ से जिरेनियम्स एक्सप्लोड, दीज स्पेशल काइंड ऑफ फ्लावर्स, दे सराउंडेड हिज हाउस। उसके चारों तरफ से इसके घर के इर्द गिर्द ये खूबसूरत प्लांट्स और उनके फूल नजर आ रहे थे। इट वॉज ए ब्यूटिफुल हाउस। शायर सचमुच में कहता है अपने घर के बारे में कि इट वॉज इंडीड ए ब्यूटिफुल हाउस। ये बहुत ही खूबसूरत मकान उसका घर नजर आ रहा था। बिकॉज द geraniums they exploded, they were blooming, they sprouted everywhere and it was a beautiful house। एक खूबसूरत घर शायर का घर था जहाँ वो रहता था, स्पेन की कैपिटल में जहाँ वो रहता था। स्पेनिश कैपिटल इट्स नेम इज मैड्रिड। उस शहर के बीचों बीच उसका घर इंतहाई खूबसूरत घर था जहाँ चारों तरफ से फूल थे और इसके अलावा विद डॉग्स, वहाँ डॉग्स भी थे एंड लिटिल चिल्ड्रन, और छोटे छोटे बच्चे भी थे। इट वॉज ए वेरी गुड हाउस। एक खूबसूरत मकान था जहाँ हर जगह हर वक्त कुत्ते बच्चे मस्ती करते हुए दिखाई देते थे। इट वॉज ए हाउस विच वॉज फुल ऑफ एक्टिविटी। देयर वर डॉग्स, देयर वर लिटिल चिल्ड्रन एंड दे वर प्लेइंग। वो खेल रहे थे। शायर बिफोर द स्पेनिश वॉर, अभी जंग नहीं छिड़ी थी, खाना जंगी, उसका पहला वाला मंजर बयान करता है। एवरीथिंग वॉज ओके, all things they were calm, there was prosperity, there was peace, there was beauty। That's why in these lines, in the opening lines of the poem,
The poet says about his place where he was living. Then he discusses the castle, a place full like a sea of leather, full of activity. Then he describes his house, that it was indeed a beautiful house in which the geraniums, they sprouted, they exploded. It was a beautiful house with dogs and little children. तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे और आगे की लाइंस को हम कल एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. थैंक्स, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम.